Hello students, how are you all? Today we'll start a new topic that's name is application of biotechnology in agriculture field. Okay, in previous class I have told you there are different branches of biotechnology like medical biotechnology, animal biotechnology, industrial biotechnology and plant or agriculture biotechnology. Okay, in these field biotechnology play major role to produce different kinds of products, okay, like antibiotics, vaccines, hormones, bioactive molecules, cosmetic materials, alcoholic drinks, transgenic plants, transgenic animals, etc. Okay, now we'll study about role of biotechnology or recombinant technology, okay, that play major role in agriculture field. Okay, application of biotechnology in एग्रीकल्चर, ठीक है। अब आप जाने बेटा, ठीक है, अब आपको जानना है बेटा कि इन केस ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है, अलग अलग तरह के मेथड्स यूज किए जाते हैं बेटा टू इंक्रीज क्रॉप प्रोडक्शंस। ओके, मेनली देयर आर 3 मेथड्स और 3 पॉइंट्स बाय विच फार्मर्स कैन इंक्रीज क्रॉप प्रोडक्शंस। ओके, एंड दिस 3 पॉइंट्स आर फर्स्ट एग्रो chemical based agriculture, second organic agriculture, third genetically engineered crop based एग्रीकल्चर, ठीक है। तो बेटा ये 3 मेथड्स हैं by which crop productions can be increased. Okay, first of all we'll study about agrochemical based agriculture. Okay, you know very well there are 2 types of farming, inorganic farming and organic farming. Okay, in case of inorganic farming, farmers use different kinds of chemical substances to increase fertility of the soil, okay, and increase the production of crops, ठीक है। अब क्या है बेटा, जो केमिकल सब्सटेंसेस हैं, ठीक है, लाइक फर्टिलाइजर्स हैं, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, विडिसाइड्स, ठीक है, मेनली दे आर यूज्ड इन इनऑर्गेनिक फार्मिंग, ओके, टू इंक्रीज क्रॉप प्रोडक्शंस। और जैसे हम बात कर रहे हैं फर्टिलाइजर्स की, ठीक है, you know very well upper topmost layer of the soil, it is called humus, and humus is rich of mineral nutrients and water. Okay, in lower classes I think so that you have learned plant roots absorb mineral nutrients by depending on soil. Okay, and we can say that soil is rich of minerals, ठीक है। There are 2 types of mineral nutrients, macronutrients and micronutrients. Okay, in case of macronutrients, nitrogen, phosphorus, potassium, but in case of micronutrients अलग अलग तरह के मिनरल्स आते हैं बेटा, जैसे कॉपर है, मोलिब्डेनम हो गया, आयरन हो गया, जिंक हो गया, एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये असेंशियल है बेटा प्लांट्स की ग्रोथ के लिए, ठीक है, समझ रहे हैं आप इस चीज को। तब होता क्या है इन केस ऑफ इनऑर्गेनिक फार्मिंग, ठीक है, बाहर से फर्टिलाइजर्स को ऐड कराया जाता है इनटू दी सोइल, ठीक है। अब जैसे फर्टिलाइजर्स का एग्जांपल दूंगा आपको मैं, जो मेन यूज करते हैं फार्मर्स, है ना, DAP, ठीक है, ये क्या है, डाई अमोनियम फॉस्फेट, यूरिया। ओके, तो ये फर्टिलाइजर्स हैं that are used by farmers in inorganic farming like diammonium phosphate, urea, super potash. Okay, they increase fertility of the soil. Okay, that is essential for the proper growth and development of the plants. Okay, फिर हम बात करते हैं बेटा इंसेक्टिसाइड्स की, ठीक है। इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स
आर यूज्ड टू किल और डिस्ट्रॉय इंसेक्ट और पेस्ट, ठीक है। अब जैसे इंसेक्टिसाइड्स हैं वो भी केमिकल सब्सटेंसेस है बेटा, इंसेक्टिसाइड्स जैसे बताऊंगा आपको मैं BHCBDT, ठीक है। BHC यहां पर है बेंजीन हेक्साक्लोराइड, ठीक है, और DDT क्या है, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोएथीन, ठीक है। तो आपको पता है कि जो केमिकल सब्सटेंस है इंसेक्टिसाइड्स, इट इज यूज्ड टू किल इंसेक्ट्स, ओके। फिर हम बात करें पेस्टिसाइड्स की, पेस्टिसाइड्स आर आल्सो यूज्ड टू किल पेस्ट लाइक एलेथ्रिन, पायरेथ्रिन, दे आर एग्जांपल ऑफ पेस्टिसाइड्स, ओके। फिर हम बात करते हैं विडीसाइड्स की, ठीक है। Weedicides are used to destroy weeds and you know very well about weeds. Weeds are unwanted and undesirable plants that grow naturally along with main plants, ठीक है, कि जो मेन प्लांट होता है उसके साथ बेटा वो ऐसे उगाते हैं, ठीक है। जब तो बोला है कि अनवांटेड और अनडिजायरेबल प्लांट्स होते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, जो मेन प्लांट है, मेन प्लांट जो न्यूट्रिएंट्स लेता है सोइल से, ठीक है, तो उसको लेने देते नहीं है वो जो वीड्स होते हैं, ठीक है। जो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है सोइल के अंदर उनको वो खुद एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। इससे फिर जो मेन प्लांट्स होता है बेटा वो अधूरा रह जाता है, समझ रहे हैं आप इस चीज को। तो उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए जो फार्मर्स है बेटा वो यूज करते हैं विडीसाइड्स को इन इनऑर्गेनिक फार्मिंग, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल दूंगा आपको मैं विडीसाइड्स की, विडीसाइड्स लाइक 2,4-D, ठीक है। 2,4-D क्या है यहाँ पर, 2,4-डाइफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, ठीक है। 2,4,5-T इट इज ऑल्सो यूज्ड एज ए विडीसाइड्स, ठीक है। तो ये कुछ केमिकल सब्सटेंसेस है बेटा दैट आर यूज्ड इन इनऑर्गेनिक फार्मिंग, ठीक है। और इन्हीं केमिकल सब्सटेंसेस के बेस पे हमने क्या बोला है, एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर, ठीक है। अब आपको जानना यह है बेटा कि जो ये केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं दे इंक्रीज fertility of the soil and they are used to destroy insect, pest and weeds, ठीक है। बट आपको ये भी जानना है बेटा कि if farmers use excess amount of these chemical substances into the soil, okay, then they cause soil and environmental pollution। तो ये भी एक इनका हार्मफुल इफेक्ट्स होता है, ठीक है, कि अगर ज्यादा मात्रा में इन केमिकल्स को यूज किया जा रहा है, ठीक है, ऑन द क्रॉप्स एंड इनटू द सॉइल, देन दे कॉज सॉइल एंड एनवायरमेंटल पोल्यूशन, ओके। इफ these chemical substances accumulate into the soil then they cause pollution in the ground water, ठीक है। अगर एक जगह जमा हो जाते हैं बेटा then they pollute ground water, तो ये भी आप समझें, ठीक है, समझ लो आप इस चीज को। फिर हम बात कर रहे हैं ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर की, ठीक है, जो सेकंड मतलब मेथड है टू इंक्रीज क्रॉप प्रोडक्शन। इन केस ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, ठीक है, जो प्लांट वेस्ट होते हैं, प्लांट वेस्ट और एनिमल वेस्ट, दे आर यूज्ड टू इंक्रीज fertility of the soil and they are also used to increase crop production, ठीक है। जो कुछ प्लांट वेस्ट हो गए, ठीक है, एनिमल वेस्ट लाइक गोबर, ठीक है, पता है आपको इस चीज का कि काउ डंग, बफेलो डंग, ओके, और अदर काइंड्स ऑफ कैटल डंग्स, ठीक है, आर यूज्ड टू मेक मैन्योर, ठीक है। और मैन्योर बिलोंग्स टू ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, क्या मतलब है, और जो मैन्योर ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है, ठीक है। तो दिस मैन्योर इज यूज्ड इन फील्ड टू इंक्रीज फर्टिलिटी ऑफ द सोइल, समझ रहे हैं आप इस चीज को, ठीक है। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग है, इट इज ऑल्सो यूज्ड टू इंक्रीज क्रॉप प्रोडक्शन, ठीक है। और ये हम कह सकते हैं कि अगर हम मैन्योर्स को यूज कर रहे हैं फील्ड के अंदर, ठीक है, तो मैन्योर जो है मैन्योर डज नॉट कॉज पोल्यूशन, एनी काइंड ऑफ पोल्यूशन, ठीक है, समझ रहे हैं आप इस चीज को। तीसरा जो है जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर, ये मेन है जो हमें पढ़ना है, ठीक है। इस चैप्टर के अंदर मतलब ना ये हमें पढ़ना है बेटा, ठीक है, कि हम एक जीन को किस तरह आइसोलेट करते हैं, ठीक है, और जीन को हम किस तरह दूसरे ऑर्गेनिम्स की बॉडी में इंसर्ट करवा रहे हैं, ठीक है। तो बेटा इसका मतलब ये है कि जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर के अंदर, ठीक है, कि जो जीन, ठीक है, जो हमने किसी एक दूसरे प्लांट से निकाला है, दिस जीन हैज गुड क्वालिटी, ओके, एंड दिस जीन इज इंसर्टेड इनटू अनदर प्लांट्स बॉडी, ओके। नाउ दिस प्लांट विल बी नोन एज जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स, क्योंकि हमने किसी दूसरे प्लांट का जीन
दूसरे प्लांट के अंदर डाला है, समझ रहे हो आप चीज को। अब वो प्लांट से कहलाएगा जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स। ओके, अब उस प्लांट्स के अंदर जो जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट है, ठीक है, वो कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएंगे, वो कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएंगे जो जिस कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए वो जीन रेस्पॉन्सिबल था, समझ रहे हैं। अब जैसे जो हमने जीन डाला है प्लांट्स के अंदर, वो रेस्पॉन्सिबल है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन, ठीक है। तो अब उस प्लांट के अंदर क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगी, समझ रहे हैं आप इस चीज को, ठीक है। तो जो जेनेटिकली मॉडिफाइड जो प्लांट्स थे बेटा, ठीक है, दे आर ऑल्सो यूज्ड टू इंक्रीज क्रॉप प्रोडक्शन। ओके, एंड फॉर योर कैन इंफॉर्मेशन, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स genetically modified plants have good characteristics than compared to normal plants। तो ये भी आपको समझना है, ठीक है। फिर हम बात कर रहे हैं ग्रीन रिवोल्यूशन की, ठीक है, ग्रीन रिवोल्यूशन। First of all, you should know that what is green revolution. Green revolution provides help to increase crop productions. Okay, and for your kind information, in India, green revolution was initiated in 1960. ठीक है, कब स्टार्ट किया इंडिया में ये 1960, ठीक है। And here one question in your mind, who initiated a green revolution in India, ठीक है, कि ग्रीन रिवोल्यूशन किसने शुरू किया था बेटा इंडिया के अंदर, ठीक है। तो आपको ये जानना है, एक एमएस स्वामीनाथन, क्या नाम दूंगा बेटा मैं, एमएस स्वामीनाथन। एमएस स्वामीनाथन इनिशिएटेड ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडिया, ठीक है। एंड इफ एनीबॉडी आस्क्स फ्रॉम योर साइड वाज फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडिया, तो आप नाम क्या देंगे, एमएस स्वामीनाथन, एमएस स्वामीनाथन, ठीक है। लेकिन जो फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन है इन वर्ल्ड, वो दूसरे साइंटिस्ट हैं, नॉर्मन ई बोरलॉग, ठीक है। लेकिन इंडिया में कौन से, एमएस स्वामीनाथन, ठीक है। अब क्या है बेटा कि उस समय जब कंटिन्यूसली पॉपुलेशन बढ़ रही थी इंडिया के अंदर, ठीक है, तो बेटा क्या था कि जब पॉपुलेशन बढ़ रही है तो फूड प्रोडक्शन भी इंक्रीज करना असेंशियल था टू फुलफिल द डिमांड ऑफ फूड, ठीक है, फॉर इंक्रीजिंग पॉपुलेशंस। तो उस तब ग्रीन रिवोल्यूशन सामने आई थी बेटा, ठीक है। और ग्रीन रिवोल्यूशन ने क्या किया था, ग्रीन रिवोल्यूशन ने कुछ मेथड्स यूज किए थे टू इंक्रीज क्रॉप प्रोडक्शन, ठीक है। जो पहला मेथड ये था कि बाय द हेल्प ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन, ठीक है, फार्मर्स यूज केमिकल सब्सटेंसेस। क्या यूज किया फार्मर्स ने, केमिकल सब्सटेंसेस टू इंक्रीज क्रॉप प्रोडक्शंस, ठीक है। सेकंड, डेवलपमेंट कह सकते हैं कि डेवलपमेंट मेथड्स ऑफ इरिगेशन, ठीक है। जो इरिगेशन मेथड था, व्हाट द मीन ऑफ इरिगेशन, सप्लाई ऑफ वाटर टू द प्लांट्स, ठीक है। तो इन रिवोल्यूशन पीरियड्स, ठीक है, जो इरिगेशन मेथड्स थे बेटा उनको भी डेवलप किया गया था, ठीक है। तीसरा था क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन बिटवीन सेमी ड्वार्फ वैरायटीज, जो छोटे प्लांट्स थे that has good characteristics, ठीक है, सेमी ड्वार्फ वैरायटीज ऑफ प्लांट्स, उनके बीच में क्या करवाया था, क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन टू इंक्रीज क्रॉप प्रोडक्शन, ठीक है। और फोर्थ था बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिस, ठीक है। तो इन चारों से, ठीक है, इन चारों पॉइंट से ग्रीन रिवोल्यूशन कारगर साबित हुआ क्रॉप प्रोडक्शन को इंक्रीज करने में, ठीक है। लेकिन आपको एक बात और ध्यान रखनी है अब, ठीक है, कि जो एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर है बेटा वो हर किसी फार्मर्स के बस की बात नहीं है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है ना, जो केमिकल सब्सटेंसेज हैं, इंसेक्टिसाइड्स हो गया, विडिसाइड्स है, पेस्टिसाइड्स है, फर्टिलाइजर्स हैं, दे आर एक्सपेंसिव, ठीक है। तो हर कोई फार्मर्स इनको परचेज नहीं कर पाता, समझ रहे हैं आप इस चीज को, ठीक है। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए, अच्छा फिर एक बात और है, ठीक है, एक है कॉन्वेंशनल ब्रीडिंग और ट्रेडिशनल ब्रीडिंग मेथड्स, ठीक है। क्या हमें पता है कि जो एग्जिस्टिंग वैरायटीज ऑफ क्रॉप्स हैं, ठीक है, जो मौजूदा जो क्रॉप्स हैं उनके बीच में अगर क्रॉस हाइब्रिडेशन करवाएंगे, ठीक है, टू इंक्रीज क्रॉप प्रोडक्शन, तो इट इज नॉट पॉसिबल कि हम सिंपली ट्रेडिशनल ब्रीडिंग करवा लें, कॉन्वेंशनल ब्रीडिंग करवा लें टू इंक्रीज क्रॉप प्रोडक्शन, तो ये भी पॉसिबल नहीं था। उसके बाद फिर क्या होगा, सामने आया रोल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, समझ रहे हैं, और क्या बने, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स बने टू इंसर्टिंग जीन, ओके, इनटू द प्लांट्स बॉडी। तो हम कहते हैं कि ये फिर लास्ट में साबित हुआ, मतलब कारगर साबित हुआ टू इंक्रीज क्रॉप प्रोडक्शन, दैट इज जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर, ठीक है। अब हमें जानना है डेफिनेशन ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, कि जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, वो किस तरह बनाए जाते हैं। बता चुका हूं जस्ट अभी आपको, मतलब वो सिंपल सी बात है
ईच एंड एवरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिज्म इट इज कंट्रोल्ड बाय जीन, ठीक है। जीन ही प्रोडक्ट्स बनाता है बेटा, ठीक है, एनिमल्स की बॉडी के अंदर। अब चाहे वो प्लांट्स है या एनिमल्स है, माइक्रोब्स है, जो भी है, ठीक है। होता क्या है बेटा कि बाय द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, जीन मैनिपुलेशन प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। या तो हम किसी हार्मफुल जीन को बाहर निकाल देंगे वहां से, या फिर कुछ जो डिजायरेबल जीन्स होते हैं उनको ऑर्गेनिज्म की बॉडी में इंसर्ट करवा देंगे, ठीक है। तो अगर हमने ऐसा किया तो वो ऑर्गेनिज्म क्या कहलाएगा, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। अब डेफिनेशन आपको देता हूं मैं कि प्लांट्स, एनिमल्स, फंगी, बैक्टीरिया whose gene have been altered by manipulation, then these organisms will be known as genetically modified organisms, ठीक है। क्या बता दिया आपको मैंने, in case of plants, in case of animals, in case of fungi, in case of bacteria whose gene, ठीक है, whose gene have been altered by manipulation, okay, समझ रहे हैं, then these organisms will be known as genetically modified organisms, ठीक है। यानी और सिंपली हम कह सकते हैं कि जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म्स होते हैं, ठीक है, तो उनके जीन के अंदर मैनिपुलेशन हो जाना एक तरह से, ठीक है। या तो जो हार्मफुल जीन है उसको बाहर निकाल देना ऑर्गेनिज्म की बॉडी से, या फिर कुछ जो गुड डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स वाले जीन है उनको ऑर्गेनिज्म की बॉडी में इंसर्ट करवा देना, ठीक है। फिर अब वो ऑर्गेनिज्म क्या कहलाएंगे बेटा, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म्स, ठीक है। अब हम बात करेंगे बेटा एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर कि व्हाट्स द रोल ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स, ओके, कि जो उनके एडवांटेज हैं वो क्या है जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स के। एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स हैव गुड कैरेक्टरिस्टिक्स देन कंपेयर टू नॉर्मल प्लांट्स, ठीक है। आवर टॉपिक इज merits of genetically modified plants, ठीक है। अब फर्स्ट इसमें ये बेटा कि जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स आर मोर टॉलरेंट टू abiotic stresses like cold, hot, drought, salt, etc. ओके, कि जो जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स होते हैं, ठीक है, दे कैन इजीली ग्रो इन एबायोटिक स्ट्रेस कंडीशंस, ठीक है, कि जैसे कोल्ड एनवायरमेंट है, ठीक है, तो दे कैन ग्रो इन कोल्ड एनवायरमेंट, दे कैन ग्रो इन हॉट एनवायरमेंट, दे कैन ग्रो इन ड्रॉट्स, ठीक है, कि अगर वहां पर पानी की कमी होगी, ठीक है, इन द प्रेजेंस इन द लैक ऑफ वाटर दे कैन इजीली ग्रो, ठीक है, पानी की कमी में भी जो जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स होते हैं दे कैन इजीली ग्रो, ठीक है। सॉल्ट, इफ द अमाउंट ऑफ सॉल्ट इंक्रीज्ड इन अ सॉइल, ओके, देन दे कैन आल्सो ग्रो इन अ सैलिनिटी सॉइल्स, ठीक है, कि वो सैलिनिटी सॉइल के अंदर भी इजीली ग्रो हो सकते हैं, ठीक है। तो ये मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स की, समझ लो आप इस चीज को। अब हम बात कर रहे हैं सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स की। जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स रिड्यूस्ड reliance on chemical substances, ठीक है। आप जान रहे हैं इस चीज को कि इन इनऑर्गेनिक फार्मिंग आई हैव टोल्ड यू some chemical substances are used like insecticides, pesticides, weedicides, fertilizers, okay, but you should know that genetically modified plants have good characteristics, okay, and they can reduce
रिलायंस मीन्स डिपेंडेंट, ठीक है, डिपेंड रहना किसी के ऊपर। जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स रिड्यूस्ड रिलायंस ऑन केमिकल सब्सटेंसेस, ओके, विदाउट इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, विडिसाइड्स दे कैन इजीली ग्रो, ओके। तो यानी कि बात ये बेटा कि बाय द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी और जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है, ऐसे प्लांट्स बनाए जा चुके हैं, दे आर नोन एज पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स और इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स, ठीक है, जो ऑलरेडी पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स और इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स होते हैं, ठीक है, उनके ऊपर इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स को यूज करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, क्योंकि बाय द हेल्प ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग कुछ ऐसे जीन्स इंसर्ट करवा दिए गए बेटा उन प्लांट्स की बॉडी के अंदर, जिससे वो प्लांट्स क्या बन गए बेटा, इंसेक्ट रेजिस्टेंट बन चुके हैं और पेस्ट रेजिस्टेंट बन चुके हैं, ठीक है। अब उनको आवश्यकता नहीं है इंसेक्टिसाइड्स की और पेस्टिसाइड्स की, ठीक है। तो ये भी कैरेक्टरिस्टिक्स है किसकी, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स की, ठीक है। और हम बात कर रहे हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स help to reduce post harvest losses, ठीक है। You know very well about harvesting after मैच्योरिटी ऑफ क्रॉप्स, ठीक है, जब क्रॉप पक जाती है बेटा तो हार्वेस्टिंग होती है, कटाई होती है क्रॉप की, ठीक है। तो अब क्या होता है बेटा, जो जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स हैं, जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है, ठीक है, इट प्रोवाइड्स हेल्प टू रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस, ठीक है। कटाई के बाद जैसे स्ट्रॉ बचता है, फॉडर्स बचते हैं जिनको हम एनिमल्स को यूज करवाते हैं एज ए फूड, ठीक है, तो मतलब कम से कम कचरा बचे, वेस्ट बचे, ठीक है, स्ट्रॉ वगैरह कम से कम बचे, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में फूड ग्रेन्स मिले, चाहे वो व्हीट ग्रेन्स हैं या मिलेट ग्रेन्स हैं या राइस ग्रेन है, जो भी है, ठीक है। तो जो मतलब हार्वेस्ट जो लॉस होता है वो कम से कम हो, ठीक है, और कम से कम किन प्लांट्स में होता है, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स के अंदर, ठीक है। तो सिंपल ही है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हेल्प टू रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस, ठीक है। फिर हम बात कर रहे हैं फोर्थ पॉइंट है जो, ठीक है, फोर्थ पॉइंट में क्या है कि जो जेनेटिकली मॉडिफाइड जो क्रॉप्स होती है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स इंक्रीज efficiency of mineral usage by plants, ठीक है, कि जो जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स होते हैं दे कैन इजीली ग्रो एट दैट टाइप ऑफ सॉइल इन विच लैक अमाउंट ऑफ मिनरल्स अकर्स, ठीक है, कि जिस सॉइल के अंदर लैक अमाउंट है, किसका लैक अमाउंट है, ठीक है, मिनरल्स का, ठीक है। तो वहां पर भी जो ये जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स हैं दे कैन इजीली ग्रो, ठीक है, समझना आप इस चीज को। अब इससे क्या होगा बेटा, जो जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स होते हैं वो एक दूसरी हेल्प भी करते हैं, ठीक है, दे प्रिवेंट एक्सोस्टेशन ऑफ फर्टिलिटी ऑफ द सोइल, ठीक है, कि ये जो प्लांट्स हैं, ठीक है, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स, ठीक है, अगर वो उस सॉइल के अंदर भी इजीली ग्रो हो रहे हैं जहां पर कम अमाउंट है किसका, मिनरल्स का, तो हम कह सकते हैं सिंपली बेटा दिस प्रिवेंट अर्ली एक्सोस्टेशन ऑफ फर्टिलिटी ऑफ द सोइल, ठीक है। तो ये भी इनकी अच्छी कैरेक्टरिस्टिक्स है जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स की। समझ रहे हो आप इस चीज को कि जितना भी मतलब मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है सोइल के अंदर, ठीक है, ये उनको एब्जॉर्ब कर लेंगे, ठीक है, उनको एब्जॉर्ब कर लेंगे और उसी मतलब एनवायरमेंट के अंदर, उसी मतलब कम अमाउंट वाले मतलब सोइल के अंदर, कम अमाउंट वाले मिनरल न्यूट्रिएंट्स वाली सोइल के अंदर, ठीक है, वो इजीली ग्रो हो जाएंगे। समझना आप इस चीज को, ठीक है। फिर मैं बात कर रहा हूँ कि जो जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स होते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स enhanced nutritional value
एग्जाम्पल गोल्डन राइस, ठीक है, कि जो जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स होते हैं, ठीक है, दे इनहेंस्ड न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ फूड, ठीक है। अब इसमें क्या है कि जैसे हम बात कर रहे हैं कि गोल्डन राइस है, ठीक है, अब गोल्डन राइस क्या है बेटा, एक बायोफोर्टिफाइड क्रॉप है, ठीक है, दैट हैज रिच क्वालिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, और रिच क्वालिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स कौन सा है उसमें, विटामिन ए, ठीक है। अब इसमें क्या है बेटा कि बाय द हेल्प ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है, जो राइस प्लांट है, इस राइस प्लांट के अंदर वो जीन इंसर्ट करवा दिया दैट इज रेस्पॉन्सिबल टू प्रोड्यूस बीटा कैरोटीन, ठीक है। एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, बीटा कैरोटीन इज प्रिकर्सर ऑफ विटामिन ए, ठीक है। तो आप समझे इस चीज को कि राइस प्लांट के अंदर, ठीक है, वो जीन इंसर्ट करवा दिया दैट इज रेस्पॉन्सिबल टू सिंथेसाइज बीटा कैरोटीन, ओके। नाउ बीटा कैरोटीन अकर्स इन दीज जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स, ठीक है। अब इन राइस प्लांट्स के अंदर क्या परसेंट है, बीटा कैरोटीन परसेंट, ठीक है। अब क्या बेटा, अब उन राइस को जब ह्यूमंस ईट करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा बेटा, बीटा कैरोटीन कन्वर्ट्स इनटू विटामिन ए, समझ रहे हैं आप इस चीज को, बीटा कैरोटीन किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, विटामिन ए के अंदर, समझ रहे हैं आप इस चीज को, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जो जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स होते हैं, ठीक है, दे इनहेंस्ड न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ फूड। एग्जांपल दे दिया आपको मैंने गोल्डन राइस का, ठीक है। सिर्फ गोल्डन राइस नहीं बेटा, काफी एग्जांपल्स हैं, फ्लेवर सेवर टमाटो है, ठीक है, उस फ्लेवर सेवर टमाटो को ऐसा बना दिया गया है बेटा कि वो लॉन्ग टाइम तक मतलब डिस्ट्रॉय नहीं होगा, ठीक है, समझ रहे हैं आप इसी को। टमाटर में क्या होता है, टमाटो के अंदर कैसे वो पिलपिला हो जाता है ना, समझ रहे हैं आप इस चीज को, आफ्टर 2 और 3 डेज, ठीक है, मतलब वो एक टाइटनेस भी खत्म हो जाती है। तो कुछ ऐसे जेनेटिकली मॉडिफाइड टमाटो प्लांट्स बना दिए गए हैं, ठीक है, जिनके जो टमाटो होता है वो लॉन्ग टाइम तक मतलब सही रहते हैं, ठीक है, मतलब डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं उनका, जैसे जेनेटिकली मॉडिफाइड जो टमाटो है, फ्लेवर सेवर, ठीक है। तो बहुत सारे मतलब ऐसे जो है मतलब प्लांट्स बनाए जा चुके हैं बाय द हेल्प ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स के, ठीक है। अब हम पढ़ रहे हैं बेटा कि जेनेटिक मॉडिफिकेशन, ओके, जो जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर है, जेनेटिक मॉडिफिकेशन, हम जीन्स को हेराफेरी कर सकते हैं, मैनिपुलेशन कर सकते हैं जीन को इन ऑर्गेनिक्स बॉडी, ठीक है। तो जेनेटिक मॉडिफिकेशन हैज बीन यूज्ड टू क्रिएट टेलर मेड प्लांट, ओके, एंड दीज टेलर मेड प्लांट्स आर यूज्ड एज ए alternative source of some products like starch, fuels and pharmaceuticals for industries, ठीक है, समझ रहे हैं आप इस चीज को। तो कुछ ऐसे बड़े टेलर-मेड प्लांट्स बनाए जा चुके हैं बाय द हेल्प ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है। दोबारा मैं आपको डेफिनेशन देता हूँ बेटा, जेनेटिक मॉडिफिकेशन हैज बीन यूज्ड टू क्रिएट टेलर मेड प्लांट्स, ठीक है, टू सप्लाई अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ स्टार्च, फ्यूल्स, फार्मास्यूटिकल्स टू इंडस्ट्रीज, ठीक है, कि भाई जैसे कोई प्लांट्स ऐसे बना दिए जिनके अंदर ज्यादा अमाउंट में क्या बेटा स्टार्च है, ठीक है। अब हम उन प्लांट्स को कहाँ ट्रांसफर कर रहे हैं बेटा, इंडस्ट्रीज के अंदर, ठीक है, इंडस्ट्रीज के अंदर ट्रांसफर कर रहे हैं। अब इंडस्ट्रीज में ट्रांसफर इसलिए कर रहे हैं कि उन प्लांट्स के अंदर स्टार्च की मात्रा ज्यादा है, ठीक है। अब उस स्टार्च को यूज करेंगे टू प्रोड्यूस अदर काइंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो है ना कि जो कुछ इंडस्ट्रीज होती हैं दे आर बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर, These industries are known as agro-based industries, ठीक है, कि एग्रीकल्चर से प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, ठीक है, और वो प्रोडक्ट्स को ट्रांसफर कहाँ करते हैं अपन, इंडस्ट्रीज के अंदर करते हैं, ठीक है। तो आप समझे कि बाय द हेल्प ऑफ बायोटेक और जेनेटिक इंजीनियरिंग कुछ ऐसे टेलर मेड प्लांट्स बना दिए गए बेटा, ठीक है, जिनके अंदर अच्छी क्वालिटी होती है देन कंपेयर टू नॉर्मल प्लांट्स, और उन प्लांट्स को हम कहाँ ट्रांसफर कर रहे हैं, into the industries, okay, for production of other kinds of products, ठीक है। In the next class we'll study about production of insect resistant plants, कि जो insect resistant plants होते हैं वो किस तरह बनाए जाते हैं, ठीक है। Okay, thank you.